Started, but it's not starting. Now started. Okay, okay. Now it is started. Okay. So today's topic is don't care function in Karnaugh map. So we have solved Karnaugh map examples for SOP expressions, for POS expressions. We have simplified the long SOP expressions, POS expressions by using Karnaugh map. But one of the important topic in the Karnaugh map is still left, and that is don't care function. So what is don't care function and how this don't care function is used in SOP expression simplification and POS expression simplification that we are going to see in today's lecture. So topic of today's discussion is don't care function. So this don't care function sounds very like differently. Like uh, uh, we generally don't see this kind of a topic in engineering. Okay, so we see Holzer method, we see Rayleigh's method, we see Bernoulli's expression, we see Bresenham's expression. But this don't care function, this is something very unique. uh, और ये जैसे कि हम डोंट केयर फंक्शन ये ऐसा कोई टॉपिक है ये हम जनरली देखते नहीं है लेकिन आज का जो टॉपिक है ये यही है डोंट केयर फंक्शन सो व्हाट इज डोंट केयर फंक्शन एंड हाउ दिस डोंट केयर फंक्शन इज used in Karnaugh map that is a topic of discussion in today's lecture. So ये होता क्या है सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया है कि solve or rather simplify following Boolean expression using Karnaugh map or K-map. Okay, and the expression is given as function of A, B, C, D, and that is summation of small one. 0, 1, 5, 7, 0, 1, 7, 8, 9, 12, 14, 8, 9, 12, 14, 15 plus seven, eight, nine, six, seven. Okay, so this is a Boolean expression. Now here we can see that this expression is of four variables A, B, C, D. Summation M means this is SOP expression. So 0, 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 plus this D 3, 11, 13 ये जो है ये जो SOP एक्सप्रेशन है इसमें ये ऐड किया है अब इस तरह का फंक्शन या इस तरह का एक्सप्रेशन अभी तक हमने देखा नहीं है तो ये जो D 3, 11, 13 है so this is called don't care function don't care function डोंट केयर फंक्शन यानी ये जो डोंट केयर फंक्शन है इसका आउटपुट आप 0 कंसीडर कर सकते हैं या इसका आउटपुट 1 कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एक्सप्रेशन इफ दिस डोंट केयर फंक्शन इज अटैच्ड विद SOP expression then the output of this don't care function is 1 so in case of SOP expression so this don't care function will give output as 1 at these cells
and if the don't care function is attached with POS expression, then it gives the output as 0. So for POS expression it gives the output as 0, and for SOP expression it gives output as 1 at these many cells, at these many cells. तो ये जो cells है, ये cells पे जीरो वैल्यू पुट करना है जब ये डोंट केयर फंक्शन POS एक्सप्रेशन के साथ अटैच होता है, और ये जो सेल्स है यहाँ पे वन वैल्यू पुट करना है अगर ये SOP एक्सप्रेशन के साथ अगर आता है। ओके, अब इसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं। एक्चुअली जनरली वी यूज क्रॉस सिंबल। तो ये क्या है, दिस डी स्टैंड फॉर डोंट केयर फंक्शन। सो दिस इज डोंट केयर फंक्शन, and this don't care function is attached with the SOP expression. Okay, अब ये जो सेल वैल्यूज दिया है 3, 11 एंड 13, तो ये सेल वैल्यूज पे आपको एक तो 1 लिखना है या फिर आप क्रॉस लिख सकते हैं। ओके, तो इसको किस तरह से यूज करना वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डोंट केयर फंक्शन क्या है। अब फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक डोंट केयर फंक्शन रहता क्या है। व्हील चेयर आपने देखा है, व्हील चेयर को चलाने के लिए हाथों की जरूरत है या पैर की जरूरत है? हाथों की जरूरत है, हाथों की हैंड्स की, बराबर। क्योंकि व्हील चेयर जनरली वो लोग यूज करते हैं जिनके पैर नहीं है या पैर में प्रॉब्लम है या वो चल नहीं सकते। ओके, तो अगर एक ह्यूमन बीइंग है और उसको व्हील चेयर यूज करना है, तो दो तरह के आदमी जो है वो व्हील चेयर को यूज कर सकते हैं। एक जिनके हाथ है पैर नहीं है, और जिनके हाथ है पैर भी है। ऐसा नहीं है कि जिनके पैर है वो व्हील चेयर यूज नहीं कर सकते या चला नहीं सकते, वो भी चला सकते हैं, लेकिन पैर का काम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पैर है, दिस इज डोंट केयर फंक्शन, डोंट केयर फंक्शन। सो दिस इज अ डोंट केयर फंक्शन, वो है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। वैसे ही ये जो डोंट केयर फंक्शन रहता है, अब इसको किस तरह से हम देखेंगे तो वो थोड़ा समझते हैं। अब इसके लिए हम कार्नोफ मैप बनाते हैं। कार्नोफ मैप हम जो है, जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है, वही मेथड से बनाते हैं। कन्वेंशनल मेथड में 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, this side AB, this side CD. This is A complement B complement, this is A complement B, this is A B and A B complement. Similarly, this is C complement D complement, this is C complement B, C B and C D complement. And the cell values are 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
बराबर है कि ये कर्नल मैप बराबर है? Yes, sir. नो सर, सर लास्ट कॉलम में पहले 11 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए. This is 11 and this is 10. तो ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है कर्नल मैप का फ्रेमवर्क यूज करने का. अब क्या करेंगे, अभी हम वैल्यूज प्लेस करेंगे. नाउ फर्स्ट इज 0. तो यहाँ पे पीओएस एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे? 1. 1 लिखेंगे, राइट. तो 0 पे 1, देन 1 पे 1, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15. 12, 14, 15. तो ये हो गया मैपिंग बाय यूजिंग दिस मेन एसओपी एक्सप्रेशन. ओके. अब ये जो डोंट केयर है, ये डोंट केयर में जो सेल नंबर्स दिया है, ये सेल नंबर्स आप यूज कर सकते हो बाय पुटिंग क्रॉस साइन. तो 3 में क्रॉस, 11 में क्रॉस, एंड 13 में क्रॉस. तो 3, 11 एंड 13 यहाँ पे क्या किया हमने, क्रॉस लगाया. ये क्रॉस का मतलब क्या है, 1 है फॉर एसओपी एक्सप्रेशन और 0 है पीओएस एक्सप्रेशन. अगर ये एसओपी एक्सप्रेशन के साथ है तो वो x का वैल्यू 1 है, और पीओएस एक्सप्रेशन है तो x का वैल्यू 0 है. तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1. अब ये डोंट केयर फंक्शन है, यानी जो ग्रुपिंग करने के लिए जो जरूरी है, ग्रुपिंग करने के लिए जरूरी है, इसलिए हमने उसको यूज किया. जैसा कि इसका एक एग्जांपल देते बोले, अगर आपको फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना है और आप सब एडल्ट स्टूडेंट्स है, बड़े स्टूडेंट, बड़े बड़े सब 20-22 साल के सब लड़के हैं, क्रिकेट खेलना है, लेकिन आपके पास 10 ही मेंबर है और टीम बनाने के लिए 11 मेंबर की जरूरत है, और आपको कोई मैच खेलना है. और बाजू में जो है कुछ छोटे बच्चे जो 8, 10, 12 साल के, वो खेल रहे हैं. तो आपको टीम बनाने के लिए आपको एक मेंबर चाहिए. तो आप क्या करोगे कि वो जो छोटे बच्चे हैं उसमें से कोई भी एक मेंबर ले लोगे. उसके परफॉर्मेंस से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको बैटिंग आती है, उसको बॉलिंग आती है, उसको फील्डिंग आती है, उसका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसका जो है प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. ये जो है, ये एक्सपोजिशन ऐसे ही है, सिर्फ ग्रुपिंग करने के काम में आएगा, बाकी उसका कोई रोल नहीं है. हाँ? तो ये जो है दिस इज डोंट केयर फंक्शन. ये जो है आपका एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के काम में आता है, अदरवाइज उसका कोई रोल नहीं रहता है. अभी यहाँ पे ये हमने ये पोजीशन पे एक्स एक्सिस रख दी है. अभी ग्रुपिंग करते हैं. अभी ग्रुपिंग करते समय सबसे पहले हम ऑक्टेट से चालू करते हैं. तो यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है क्या, इसको भी कंसीडर करना है, ये x को भी कंसीडर करना है. तो ये x और ये 1, ये सारी पोजीशंस को कंसीडर करके आपको अभी ग्रुपिंग करना है. तो सबसे पहले हम ऑक्टेट से चालू करते हैं. तो यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है क्या? Yes. यस. यस, यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है. ये जो है 1, 3, 5, 7, 13, 15, 9, 11, ये पोजीशन पे ऑक्टेट बन रहा है ना. तो ये हमने ऑक्टेट बना दिया. ओके.
फिर भी हमारे ये पोजीशन बचा है, ये बचा है और ये बचा है। अभी ऑक्टेट हो गया। अभी नेक्स्ट प्रायोरिटी हम कॉर्ड को देंगे। तो कॉर्ड है क्या यहाँ पे? यस सर है। हाँ, कॉर्ड भी है। कौन सा? 12, 13, 8, 9। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका एक कॉर्ड बनाएंगे हम। ये कॉर्ड बन गया। अभी हमारे ये दो पोजीशन बचे हुए हैं। अब ये दो पोजीशन को कॉर्ड से इंक्लूड कर सकते हैं क्या? कॉर्ड लेके नो सर। नहीं ले सकते? सर कर सकते हैं, कर सकते सर। हाँ, कैसा? सर हाँ 0 सर 1 बन और सकता है 8 9। सर। वो 12 13 15 14 स्ट्रेट लाइन। 12, 13, 14, 15। हाँ, ये कॉर्ड से ये आ जाएगा। ये कॉर्ड से ये आ जाएगा, करेक्ट। और अभी बचा ये। इसको कॉर्ड से आ सकता है कि ये? यस सर। कैसा? सर हाँ, सर 0 1। 8901। 0189, राइट। 0189। ये कॉर्ड से ये भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि सारे जो वन है वो यूटिलाइज हो गए। और ये जो एक्स है, इनका काम क्या है? बस वो ऑक्टेट कंप्लीट करना, ये इसका काम है। अब इसकी कॉमन टर्म्स निकालते हैं। सबसे पहले ऑक्टेट से का निकालते हैं। तो ऑक्टेट से हमको पता है कि कितने वेरिएबल्स कॉमन निकलते हैं? एक वेरिएबल। एक ही वेरिएबल कॉमन निकलता है। तो ये ऑक्टेट में ये 4 रोज है और चारों में कोई कॉमन नहीं है, तो ये छोड़ दो। ये दो जो कॉलम है, ये दो कॉलम में से कौन सा वेरिएबल कॉमन है? डी। डी। डी है। तो यहाँ से डी कॉमन निकलेगा। फिर ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाले कॉर्ड में रो में से क्या आएगा? ए। ए आएगा। और कॉलम में से एक सी भी कॉम्प्लीमेंट। डी सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट, बराबर। अब है ये वाला कॉर्ड, ये वाला जो रो वाला कॉर्ड है। इसमें क्या कॉमन आएगा? ये रो एक ही है, तो ये ए भी आएगा। ए भी ए बी। आएगा। हाँ। और क्या आएगा? सर ये भी जाएगा। ए भी आएगा। 4 कॉलम तो अलग अलग है, तो वो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। अब क्या बचा है? ये वाला कॉर्ड बचा है, ये वाला। ये वाले कॉर्ड में अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? डी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट है। और सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट, यस। तो ये सारे हमारे कवर हो गए। तो आउटपुट में क्या आएगा? डी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। तो ये जो लॉन्ग एक्सप्रेशन है, ये लॉन्ग एक्सप्रेशन जो है ये शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बाय यूजिंग दिस डोंट केयर फंक्शन। ओके, तो इस तरह से ये डोंट केयर फंक्शन यूज होते हैं। तो एसओपी के साथ है तो वो आउटपुट जो है 1 देते हैं, और पीओएस के साथ है तो आउटपुट 0 देते हैं। तो आपको जैसा यूज करना है उसको वैसा यूज करो। और ग्रुपिंग, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग बढ़ाओ, जिसकी वजह से आउटपुट के जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो। तो ये है डोंट केयर का एग्जांपल। और एक डोंट केयर का एग्जांपल लेते हैं।
तो ये एक एक्सप्रेशन दिया है, तो फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एबीसीडी की जगह डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये वेरिएबल्स यूज किए हैं, तो 4 वेरिएबल्स प्लस पाई इनटू कैपिटल एम, तो पाई इनटू कैपिटल एम क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज POS. POS. POS expression, product of some expression, right? And these are the cell values plus ये D 4, 10, 30. So this D represents the don't care function. कभी कभी इसको लेके ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं 5, 5, 4, 10, 30. इसका भी वही मीनिंग है. कभी कभी D यूज करते हैं, कभी कभी 5 यूज करते हैं. तो अगर यहाँ पे कोई भी एसओपी एक्सप्रेशन हो या पीओएस एक्सप्रेशन हो, अगर एडिशन करके और सेम वैल्यूज दी हुई है, इसका मतलब वो डोंट केयर फंक्शन है. ओके, तो यहाँ पे डी या पाई दो में से कुछ भी यूज होता है. यहाँ पे 4, 10 एंड 30 ये जो है डोंट केयर फंक्शन है. अब इसके लिए हम कार्नोट मैप बनाते हैं. Zero 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 one 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 zero 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 one 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 zero. यहाँ पे इस साइड में WX लेते हैं, WX और ये है YZ. तो ये क्या आएगा, W कॉम्प्लीमेंट X कॉम्प्लीमेंट W कॉम्प्लीमेंट X WX and WX complement. And this is y complement z complement, this is y complement z, y z and y z complement. Okay, so this is 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14. तो ये हो गया हमारा जो बेसिक कार्नोट मैप का स्ट्रक्चर है वो. अब यहाँ पे हम वैल्यूज प्लेस करेंगे. तो यहाँ पे 3 6 7 ये पोजीशन पर रखना है, तो अभी क्या लिखेंगे, यहाँ पे कौन सी वैल्यू प्लेस करेंगे, कौन सी वैल्यू मैप करेंगे. यस 3 6 7 9 ये पोजीशन पे क्या कौन सी वैल्यू रखेंगे. 0. 0. सर पीओएस तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा ना सर. हाँ अगर पीओएस है तो 1 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा ना. गलत, सही बात, ये गलत हो गया.
गलत लिख दिया, एक्चुअली ये एसओपी नहीं है, ये पीओएस है। तो यहाँ पे किसका एडिशन आएगा, तो ये क्या होगा, W प्लस एक्स। तो पीओएस में अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो वेरिएबल रहता है उसका वैल्यू 0 रहता है, और कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल का वैल्यू 1 रहता है, करेक्ट। तो ये जो है ये W प्लस एक्स आएगा, और मल्टीप्लीकेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसओपी में रहता है, पीओएस में एडिशन रहता है। तो यहाँ पे W प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, W प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, दिस इज W complement plus X complement, and this is W complement plus X, अब बराबर है। और ये जो आएगा ये आएगा Y Z, this is Y Z complement, this is Y complement Sir, plus. plus plus, right, plus plus आएगा, plus Z complement and Y complement plus Z, अब बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Now it is correct. Now this triangle is for POS expression. Now we will put the values at 3, 6, 7, 9, 11, 12, 15. तो यहाँ पे अभी हमको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 0 लिखना है, 0. 0 आएगा, राइट। So 3 में 0, 6, 0, 7, 0, 9, 0, 11, 0, 12, 0, 15। तो ये हो गया अपना मेन पीओएस एक्सप्रेशन। लेकिन इसके अलावा डोंट केयर फंक्शन भी है, तो डोंट केयर फंक्शन हम यूज करेंगे ताकि हमारा जो ग्रुपिंग है वो और अच्छे से बने और फाइनल एक्सप्रेशन और रिड्यूस हो। तो ये है 4, 10 एंड 13। सो 4, 10 एंड 13। 4, 10 एंड 13 ये तीन पोजीशन पे हमने क्रॉस किया। तो क्रॉस का वैल्यू 0 रहता है व्हेन दिस डोंट केयर फंक्शन इज एडेड टू पीओएस एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये x का वैल्यू क्या है, 0 है। अभी हम इसका ग्रुपिंग करते हैं। कैसे ग्रुपिंग आएगा, सबसे पहले ये है क्या अपना, क्या बोलते थे उसको, ऑक्टेट है क्या, ऑक्टेट? No. ऑक्टेट नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड है क्या, Yes. कौन सा, Sir, third column. थर्ड कॉलम, ये 3, 7, 15, 11। सो ये कॉर्ड है। और 13, 15, 9, 11. 13, 15, 9, 11 ये कॉर्ड है। हाँ, अभी अपने इसको केयर नहीं करना है अपना, इसको कवर करना ये हमारा एम नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट क्रॉस, वी ओनली केयर अबाउट जीरो। We will make the grouping so that all the zeros should be covered with the help of x. But if x is remaining at the end, so we don't care. x अगर रहता है हम उसका विचार नहीं करेंगे, हमको सारे जीरो कवर करने हैं। ओके, x छूटता है तो छूटने दे, उसका केयर हम नहीं करेंगे। तो अभी जो बचे हुए हैं वो क्या है, ये जीरो बचा है, ये जीरो बचा है, इसको कवर करना है। तो ये कॉर्ड से पॉसिबल है क्या? No, sir. कॉर्ड से पॉसिबल नहीं है, फिर पेयर करना पड़ेगा। तो ये एक पेयर बन रहा है और ये एक पेयर बन रहा है, बराबर?
Yes, sir. या फिर कोई अगर ऐसा बोले कि ऐसा पेयर बनाना चाहे तो वो भी चलेगा। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सोल्यूशन। अगर आपको ऐसा पेयर बनाना है तो ऐसा भी चलेगा, या फिर ऐसा भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन अभी ये छूट गया है, ये जो है एक्स एक्स छूट गया है, सो वी डोंट केयर अबाउट दिस एक्स, डोंट केयर, उसको कवर करना हमारा एम है ही नहीं। हमको सारे जीरोस जो है, जो जो मेन फंक्शन, मेन क्यूएस फंक्शन की जो सेल वैल्यूज है उसके जीरोस कवर करना हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। ये सेल वैल्यूज जो है इसको हम केयर नहीं करते, ये सिर्फ हम उसको जहां पे भी यूज करना है, यूज एंड थ्रो है, यूज एंड थ्रो, टिश्यू पेपर जैसा, इसको लिया ग्रुपिंग करने में काम आ रहा है तो यूज करने का, और नहीं तो उसको जाने दो। ओके, सो वी डोंट केयर अबाउट these x, and the final expression will be taken from these grouping only। तो सबसे पहले ये वाला जो कॉर्ड है, ये वाला, इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन आएगा? y complement plus z complement। y complement plus z complement, देन ये वाला कॉर्ड, इसमें क्या आएगा? दो रो में से क्या कॉमन है? w कॉम्प्लीमेंट, तो w कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसमें क्या कॉमन है? z कॉम्प्लीमेंट, Z complement. z कॉम्प्लीमेंट। ये दो कॉर्ड हो गए, अब ये पेयर है, तो पेयर से हमको पता है कि तीन वेरिएबल्स निकलते हैं, पेयर पेयर से तीन वेरिएबल्स निकलते हैं। तो पहले तो ये जो रो है, ये रो तो एज इट इज आएगा क्योंकि दोनों कॉमन है, तो w कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट प्लस, ये दो कॉलम है, इसमें से क्या कॉमन आएगा? z complement नहीं, नहीं, y y y y आएगा, y ये आएगा यहाँ से कॉमन, और ये वाला पेयर है यहाँ से, ये एक ही रो है तो w प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट आएगा प्लस, ये दो में क्या कॉमन है? y कॉम्प्लीमेंट, ओके। तो ये एक दो तीन और ये चार, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू w कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट प्लस y। अभी यहाँ पे क्या साइन आएगा? ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, राइट, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो ये हो गया ये w कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट इंटू y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट इंटू w प्लस x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। So in this way we have reduced the POS expression with the help of this don't care function। अब इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे डोंट केयर फंक्शन नहीं रहता, तो डोंट केयर फंक्शन नहीं रहता तो एक्सप्रेशन जो है वो और भी बड़ा होगा। तो डोंट केयर फंक्शन से जो फाइनल जो एक्सप्रेशन है उसकी साइज क्या हुई? वो थोड़ा रिड्यूस होगी। तो दिस इज डोंट केयर फंक्शन। आपको समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ लो। Now here we have come to an end of
the digital logic part of unit number 4. Okay? तो यूनिट नंबर 4 जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यूनिट नंबर 4 में दो मेन कंपोनेंट है। पहला जो है वो है डिजिटल लॉजिक एंड सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये यूनिट नंबर 4 का जो पहला वाला पार्ट है डिजिटल लॉजिक, ये हमारा खत्म हो गया है। अब इसके बाद का है माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर चालू करने के पहले डिजिटल लॉजिक पे बेस्ड जो एक्सपेरिमेंट्स है वो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करने वाले हैं। तो आपका जो एक्सपेरिमेंट जो प्रैक्टिकल सेशन आता है वो फ्राइडे को 1 to 2 PM के बीच में आता है। और जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे वो वर्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। और ये जो डिजिटल लॉजिक टॉपिक है, जितना भी हमने स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से चालू किया था, हमने लॉजिक गेट से चालू किया था, एंड गेट, और गेट, ओके, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सनॉर गेट, एक्सऑर गेट। तो ये सारे गेट्स देखे। उसके बाद उसका बाइनरी अरिथमेटिक देखा, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। उसके बाद फिर बूलियन अलजेब्रा देखा। बूलियन अलजेब्रा से जो एक्सप्रेशन को किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो एनालिटिकल मेथड देखा। उसके बाद फिर कार्नोफ मैप देखा। सो कार्नोफ मैप इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अ लॉन्ग बूलियन एक्सप्रेशन। तो कार्नोफ मैप हो गया, उसमें फिर ये डोंट केयर फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद अलग अलग फ्रेमवर्क कैसे यूज कर सकते हैं कार्नोफ मैप के लिए, वो भी हमने देखा। तो हमारा जो डिजिटल लॉजिक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अभी इसके इस पे बेस्ड दो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, सो पहला एक्सपेरिमेंट जो है तो यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सपेरिमेंट है। सो दिस इज आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 2। ये अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हो गया हमारा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था स्टडी ऑफ सेंसर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा था स्टडी ऑफ सेंसर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिक गेट्स। ओके, यूजिंग लॉजिक गेट्स। एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, this is Karnoff mapping। तो हमारा इसमें से ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो हो चुका है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो हम आने वाले फ्राइडे को कवर करेंगे। तो ये जो फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे, उसकी तारीख क्या रहेगी? 21। सो 21/5/21 इसमें हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने वाले हैं। और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 जो है, जो कि कार्नोफ मैप पे बेस्ड है, ये हम करेंगे सैटरडे 22/5/21 फ्रॉम 10 AM to 11 AM। ये फ्राइडे है 1 PM to 2 PM। तो ये फ्राइडे का जो लेक्चर है 1 से 2 के बीच में, और सैटरडे का जो लेक्चर है मॉर्निंग का 10 to 11 PM, ये दो लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 परफॉर्म करने वाले हैं। ये दोनों जो है ये वर्चुअल मोड में वर्चुअल एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अलग अलग IITs ने मिलके जो वर्चुअल एक्सपेरिमेंटेशन बनाए हैं, वो यूज करके हम ये दो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने वाले हैं।
सो ये जो दो डेट्स है यहाँ पे आप प्रेजेंट रहो ताकि आपको जो है जो भी एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करने हैं वो समझ में आ जाए और आपको जो परफॉर्म करने में इजी रहेगा। जो उसका जो राइटअप है वो राइटअप हम राइटअप मिनिमम रखते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही राइटअप रहेगा और ज्यादा जो है वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा हम एम्फसाइज देंगे। सो फ्राइडे का लेक्चर और सैटरडे का लेक्चर, ये दो लेक्चर आप मिस मत करो। उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं और आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हैं। So that's it from my side. I think we can stop over here. We have finished with digital logic part. We will perform the two experiments on one on Friday, another one on Saturday, and then from next week onwards, we will be starting the remaining part of unit number 4, that is microprocessor. And microprocessor में basically हम देखने वाले हैं architecture of microprocessor and pin configuration. And then we move on to unit number 5, that is PLCs, programmable logic controller. So thank you very much. Thanks for attending this class. You can leave the meeting now. Amey, you can take the attendance. Yes, sir. घेतली. Okay. Okay. So thank you very much. Have a nice day. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you.